Hi friends, good morning. Welcome to Unacademy platform, the largest, the biggest learning platform. So now, क्या अब तो एग्जाम्स आ गई यार बस. November 2020 students, the day for which you're waiting, and May 20 students also. So now the exams are here, and अब है ना सब अब दिमाग में दूसरे प्रॉब्लम्स आ गए. अब क्या डाउट है मैम, एक दिन की छुट्टी मिलती है, क्या एक दिन में हम पूरा सिलेबस रिवाइज कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट. नाउ दिस ऑल थिंग्स मस्ट बी कमिंग टू योर माइंड, राइट? तो आज हम यही डिस्कस करने वाले हैं, हाउ टू प्रिपेयर इन द टैक्स अ डे बिफोर द एग्जाम. बट येस, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन आपने जो प्रिपरेशन करते वक्त जो भी मैंने आपको सजेशंस दिए थे, आपने वो सजेशंस को रिलीजियसली फॉलो किए हैं कि नहीं किए, हमें वो चेक करना पड़ेगा. am I clear? तो we'll see later that. Okay, so now, as you all know me, myself CA Meeta Mangal, and I'm here to teach you people indirect tax at CA final level. This is a Telegram channel link. You please, अगर आपको कुछ भी doubts है, you can ask on this link and we'll reply. Benefits of Unacademy. Boss, there are n number of benefits of Unacademy. इतने benefits है. First benefit, cost of everything combined together is as low as possible. That means 1500 per month. इससे कम में कुछ भी नहीं मिलता बच्चों. You can have multiple mini quiz and multiple mega quiz sessions. We'll have the ability to download PDFs with annotation. This is what I love best. मतलब जब मैं स्टूडेंट थी तो मैम का या सर का लिखा हुआ मिस हो जाता था, फिर घर पे आके याद नहीं आता था. अब तो लेक्चर है और साथ में एनोटेशंस है, ऐसा लग रहा है जैसे आप वापस लेक्चर अटेंड कर रहे हो. ऑन द स्पॉट डाउट क्लैरिफिकेशन प्लस कोर्सेज में एवरी 4th क्लास इज अ डाउट क्लैरिफिकेशन क्लास. इससे ज्यादा क्या हो सकता है यार? ऑफलाइन बैकअप ऑफ ऑल द क्लासेस, देन freedom to study from any educators of your choice. You can study from the person you want to study. You'll have single payment and access to all type of subjects, lectures and teachers, etc. Unlimited number of views, and participate in live polls in classes and end-to-end coverage. But boss, you can get the benefit only when you install the app, Unacademy Learning app. After installing Unacademy Learning app, you'll have to go to your goals. Your goal is CA Final. After selecting your goal, CA Final, you have to go for plus courses. After going for plus courses, you'll have to go for subscription. You have to go for subscription. So now question comes, ma'am, how much to pay for subscription? So you have 3 months, 6 months, 9 months, 12 months, 24 months subscription. But if you go for 12 months subscription, the amount is 24,750. And if you go for 24 month subscription, the amount is 36,000 rupees. But you will get the benefit of the subscription only when you use the code CA Meeta. Am I clear? Use the code CA Meeta. Am I clear? Yes? I hope you're with me. And first, don't forget to subscribe the channel. Like it if you honestly like it. Nothing to force. Press bell icon, and sharing is caring. And last but not the least, don't forget to use the code CA Meeta. Right now, very important boss, ये ना ये थोड़ा important है. एक दिन पहले का रिविजन बहुत बहुत मायने रखता है. पर हाँ, ये रिविजन का इम्पैक्ट कब आएगा? जब पढ़ाई करते वक्त जो मैंने आपको चीजें बोली थी. फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको बोला था चैप्टर्स के अगर आपने शॉर्ट नोट्स बना ली हो. मैंने आपको क्या क्या बनाने का बोला था? एक मैंने आपको शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए बोले थे. सेकेंड, मैंने आपको सिंपल फ्लो चार्ट्स बनाने के लिए बोले थे. एंड थर्ड, सपोज कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन है. नाउ देयर मस्ट बी लाइक 30, 40, 50 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस. आप सारे क्वेश्चंस तो डे बिफोर एग्जाम सॉल्व नहीं कर सकते, और वो क्वेश्चंस सारे सॉल्व नहीं कर सकते, और जो डे 1 पर डिफिकल्ट लगे थे वो आपको एग्जाम के एक दिन पहले देख के जाना जरूरी होते हैं. तो मैंने आपको बोला था कि हर चैप्टर की बिगनिंग में ऊपर लिख देना प्रैक्टिकल नंबर 2 का पॉइंट नंबर बी नहीं समझा, प्रैक्टिकल नंबर 5 का पॉइंट नंबर सी. मतलब एटलीस्ट ये आपको फर्स्ट टाइम में डिफिकल्ट लगा था तो एग्जाम के एक दिन पहले ये प्रैक्टिकल्स के ये पॉइंट्स आपको रिवाइज करके जाना है. मतलब ये चीज चैप्टर वाइज प्रिपरेशन में आपको हर बैच में बोलती हूँ कि हर चैप्टर के शॉर्ट नोट्स बनाओ,
हर चैप्टर के फ्लो चार्ट्स बनाओ एंड एवरी टाइम व्हेन यू सॉल्व अ प्रैक्टिकल क्वेश्चन राइट which point you were unable to understand or it was difficult for you people, so that a day before the exams अगर आपने ये रिवाइज कर लिया तो आपका पूरा सिलेबस रिवाइज हो जाएगा। नाउ कैसे जाना है बॉस, एबीसी एनालिसिस करके दिया है मैंने आपको, जीएसटी का एबीसी एनालिसिस एंड कस्टम्स का एबीसी एनालिसिस। मैं क्लियर, आपको क्या करना चाहिए, पहले जीएसटी का ए कर दो, फिर कस्टम्स का ए करना, फिर जीएसटी का बी करना, फिर कस्टम्स का बी करना। रीजन वाई, अगर आप सिर्फ जीएसटी का ए बी करोगे एंड बाद में कस्टम्स का ए बी करने जाओगे आप थोड़े टायर्ड हो चुके होंगे, एज इट इज द लास्ट पेपर है। कहीं ना कहीं सबसे बड़ा चैलेंज इज अपना वो जो 16 डेज या 15 डेज जो भी हमारी एग्जाम्स चलती है उसमें अपना फोकस, टेम्परामेंट, मोमेंटम सब बनाए रखना। एंड जो मुझे याद है मेरे सीए एग्जाम्स में, दैट लास्ट पेपर में आते आते यू आर रियली टायर्ड, इसीलिए आप टायर्ड हो भी चुके हो पर आपको लास्ट पेपर अच्छे से देना भी है। इसीलिए पहले क्या करना, पहले जीएसटी का ए में मतलब जो एबीसी में ए है 75 मार्क्स का जो 75 मार्क्स का जीएसटी आता है, इसमें से 45% मतलब अप्रोक्सीमेटली 35 मार्क्स पेपर इस ए में से आता है। जो सप्लाई अंडर जीएसटी चार्ज के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कंपोजिशन स्कीम, एग्जामिशंस पूरा इंपॉर्टेंट है, प्लेस ऑफ सप्लाई में वैल्यूएशन रूल्स, प्लेस ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई में वैल्यूएशन रूल्स, आईटीसी में रूल 43, रजिस्ट्रेशन चैप्टर, टीडीएस चैप्टर एंड दिस अटेम्प्ट में रिफंड, क्योंकि रिफंड में अमेंडमेंट आया है इसलिए रिफंड भी एक्सपेक्टेड है। Am I clear? तो अगर आप मुझसे पार्ट ए की बात करते हो, आई पर्सनली फील कंपोजिशन स्कीम पे इस अटेम्प्ट में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। आईटीसी पे इस अटेम्प्ट में क्वेश्चन विच इज बेसिकली रूल 43 मुझे लगता है आएगा। रिफंड पे क्वेश्चन आएगा। मैं क्लियर, ये मुझे लगता है अगर मैं 4 मार्क्स की बात करूं, 4 कंपोजिशन, 4 रिफंड एंड 8 मार्क्स आईटीसी, मैं क्लियर 16 मार्क्स का पेपर इस 3 टॉपिक्स में। व्हाट आई पर्सनली बिलीव, but that doesn't mean कि risk is always attached, ना थोड़ा सा uncertainty is always attached to things। Am I very clear? Yes, तो वो एक चीज का ध्यान रखना। उसके बाद कस्टम्स का पार्ट ए कर लेना। कस्टम्स के पार्ट ए में क्या था, टाइप्स ऑफ ड्यूटीज, वैल्यूएशन, ड्यूटी ड्रॉबैक, रिफंड एंड बैगेज। तो मेरे हिसाब से ये 5 चैप्टर्स करके ऑलमोस्ट आपका कस्टम हो जाता है। अगर आप मुझसे पूछो 4 नंबर भी अगर मैं 5 चैप्टर से मानूं तो 5 4 20 अगर नहीं भी आए तो 18 मार्क्स यहां से आ जाएंगे। तो वंस व्हेन यू आर डन विद पार्ट ए ऑफ जीएसटी एंड पार्ट ए ऑफ कस्टम, यू आर इन अ बेटर पोजिशन। Am I clear? Very better position. Then go with part B of GST. अगेन बहुत सिंपल चैप्टर्स है। मैंने आपको असेसमेंट ऑडिट, डिमांड रिकवरी, अपील्स, रिविजन्स एंड एडवांस रूलिंग अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल में बहुत अच्छे समझा के रखा है। तो अगर आपको लगता है कि मैम थोड़ा बच्चे इस चैप्टर से डरते हैं, अगर आपको लगता है तो आप वो रिविजन लेक्चर्स देख सकते हो। और अगर इफ यू ऑलरेडी व्यूड, मैं क्लियर, कंप्लीटली योर चॉइस है, मैं क्लियर। पर ये 4 चैप्टर्स टाइम ऑफ सप्लाई फाइनल सी में इंपॉर्टेंट है पर नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बट स्टिल आई गो टू बी। But assessment audit, demand recovery, appeals revision, advanced ruling is really important। अगर मैं 3 नंबर भी मान के चलूँ तो 4 रिजल्ट 12 मार्क्स हो जाते हैं इसमें से। एंड देन गो टू पार्ट बी ऑफ कस्टम विच इज लिवाई एंड एग्जाम्पशन फ्रॉम कस्टम, दैट्स ओके। बेसिकली एफटीपी के लिए मैं जरूर बोलूंगी, मैंने अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल पे एफटीपी के 3 सेशन 1 आर के कुछ लिए हैं। दैट्स इट, अगर आप उतना कर लोगे मोर देन सफिशिएंट। एंड देन गो टू पार्ट सी ऑफ जीएसटी एंड देन पार्ट सी ऑफ कस्टम्स। तो आई थिंक क्या होगा, सिर्फ जीएसटी करोगे ना तो कस्टम में एकदम पैनिक कर जाओगे, सिर्फ कस्टम करोगे तो जीएसटी में पैनिक कर जाओगे। दोनों का मिक्स मैच करके चलोगे तो थिंग्स विल बी प्रैक्टिकली फीजिबल, मैनेजेबल। Am I clear? And honestly, need not worry about the exams. Basically, revision is just going through once. आपको सब कुछ आता है। You have done everything. It's just that क्योंकि पेपर 1 और पेपर 8 में बहुत दिन का हमारा गैप हो गया है, तो एक बार सिर्फ रिवाइज करना है। रेस्ट यू ऑल नो एवरीथिंग। एंड वन मोर थिंग, प्लीज एक और चीज इंश्योर करना, प्लीज रात को जो बेयर मिनिमम 6 आवर्स सो के जाना है उतना एग्जाम में ध्यान रखना फॉर ऑल द पेपर्स, क्योंकि अगर ये टायर्ड होगा तो योर ब्रेन विल नॉट वर्क वाइल राइटिंग द पेपर।
स्मॉल थिंग्स हैं बट इंपॉर्टेंट है. ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग, व्हाट इज नेक्स्ट इंपॉर्टेंट. ये मेरा थॉट प्रोसेस, सबका अलग अलग हो सकता है. आपके एग्जाम में 30 मार्क्स के एमसीक्यूज आते हैं एंड 70 मार्क्स का पेपर आता है. एमसीक्यूज नहीं आते, मतलब इट कैन बी प्रैक्टिकल ऑल्सो एंड इट कैन बी थ्योरी क्वेश्चंस ऑल्सो, राइट. आई थिंक ऑलमोस्ट पीपल से दैट एमसीक्यूज पहले करने चाहिए, एमसीक्यूज पहले करने चाहिए. तो मेरा थॉट प्रोसेस नहीं है. मेरा थॉट प्रोसेस एमसीक्यू में क्या है, अगर एमसीक्यू में भी 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, प्रैक्टिकल बेस्ड एमसीक्यू हो सकता है या थ्योरी बेस्ड एमसीक्यू होता है. तो अगर थ्योरी बेस्ड एमसीक्यू है देन परफेक्टली फाइन, बिकॉज यू रीड द क्वेश्चन, यू हैव 4 ऑप्शंस एंड यू नो व्हिच आंसर इज इट. तो अगर आपको थ्योरी बेस्ड एमसीक्यूज करना है तो आप कर लो. प्रैक्टिकल बेस्ड एमसीक्यूज टच मत करना. उसका रीजन बताती हूँ. क्योंकि आपको एमसीक्यूज में 4 ऑप्शन दिए होते हैं, 4 ऑप्शन दिए होते हैं. अगर आपका ऑप्शन इन चारों में से अगर कहीं मैच नहीं हो रहा है तो यू नो यू हैव डन मिस्टेक, एंड व्हेन यू हैव डन मिस्टेक यू विल ट्राई इट अगेन एंड विल कीप ऑन ट्राइंग इट. और अगर आपका आंसर नहीं आया तो विल लीव दैट क्वेश्चन, गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन, बट बैक ऑफ द माइंड आपका वो चलता रहेगा. इस 70 मार्क्स में क्या होता है, यू डोंट नो द आंसर. तो आपके हिसाब से आपने जो आंसर निकाला है दैट इज परफेक्टली फाइन, दैट इज करेक्ट आंसर. आपने जो आंसर निकाला है वो सही आंसर है. गेटिंग माई पॉइंट और नॉट, एम आई क्लियर. तो पहले 70 मार्क्स का पेपर एकदम रिलीजियसली, अगर 100 मार्क्स के पेपर के लिए आपको 180 मिनट्स दिए होते हैं तो 70 मार्क्स के पेपर्स के लिए आपको जितना टाइम लगना चाहिए उससे थोड़ा सा कम टाइम लेके आप पहले 70 मार्क्स के पेपर कंप्लीट कर देना. उसका प्लस पॉइंट क्या होगा, एक बार आपका 70 मार्क्स का पेपर अच्छे से हो गया ना, यू नो आउट ऑफ 70 यू कैन इजीली स्कोर 50 मार्क्स. तो बच्चे हुए 30 मार्क्स की विल नॉट पैनिक, आप रिलैक्स होके कर सकते हो. पर अगर वाइस वर्सा कर दिया, 30 मार्क्स का एमसीक्यू पहले करने गए और अगर इनकेस आप कहीं वहां पे कुछ गड़बड़ कर दी, इट विल अफेक्ट योर 70 मार्क्स पेपर ऑल्सो. एम आई वेरी क्लियर? Am I very clear? This is my viewpoint. Everybody has their own thought process. This is my thought process. So I thought of sharing with you people. And honestly, चिंता मत करना, जैसे क्वेश्चन सामने आए, जैसे आता जाए वैसे करते जाना, but relax रहना. Okay? Okay, so thanks a lot and all the best for your exams and do nicely. Thank you very much.